بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محب وطن ساتھیوں۔ محمد سوار حسین شہید دوسرا حصہ کہانی کا آگے بڑھاتے ہیں۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ دشمن کا توپ خانہ حسب معمول بے پناہ گولہ باری کر رہا تھا، جس کے جواب میں ہمارا توپ خانہ بھی گولہ برسا رہا تھا۔ اس کے گرد و غبار میں اور دشمن کو اچھی آڑ میں جانے کی وجہ سے دشمن کے ٹینکوں کو دیکھنا ممکن نہ رہا۔ ایسی قیامت میں پاک فوج ایک جوان اپنی جان کو یقینی موت کے خطرے میں ڈال کر آگے جا کر اور دائیں بائیں بھاگ کر دوڑ کر دشمن کے ٹینکوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی جرت مندی اور محنت رائیگاں نہ گئی۔ اسے چھپے ہوئے ٹینک نظر آنے لگے۔ یہ جوان سوار محمد حسین تھا۔ اس نے ایک ٹینک کو دیکھا تو اس آر گن کی طرف بھاگا جو اس ٹینک کو آسانی سے زد میں لے سکتی تھی۔ اس نے گن والوں کو اس ٹینک کی محلہ وقوع بتا کر گولہ فائر کروایا اور ٹینک کو تباہ کرا دیا اور پھر آگے دوڑ پڑا۔ اتنے میں دشمن کے طیارے آ گئے جنہوں نے ہمارے مورچوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جو ہی اسے کوئی ٹینک نظر آتا وہ کسی ایسی آر گن کی پوزیشن تک بھاگتا ہوا پہنچتا جو اس ٹینک کو زد میں لے سکتی تھی۔ آر گنیں بکھر کر دور دور پوزیشن میں رکھی گئی تھی۔ ان کے توپچیوں کو دشمن کے ٹینک نظر نہیں آ سکتے تھے۔ محمد حسین آگے جا جا کر ٹینکوں کو دیکھتا رہا تھا اور آر گنوں کے توپچیوں کو رہنمائی کر رہا تھا۔ طیاروں اور دشمن کے توپ خانے کی گولہ باری کی وجہ سے صورتحال خاصی سنگین ہو گئی تھی، جس میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ دشمن کے ٹینک ایک اور سمت سے حملے کی ترتیب میں جمع ہو رہے تھے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ فراست علی شاہ نے اسکواڈرن کمانڈ میجر محمد اکرم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ میجر محمد اکرم نے ان کی مدد کے لیے ٹینکوں کا ایک ٹروپ بھیج دیا، جس کے ٹروپ لیڈر نائب رسالدار جوان تھے۔ ایک ٹروپ میں 3 یا 4 ٹینک ہوتے ہیں، تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ٹروپ کے ٹینکوں کو آر گنوں کی لائنوں میں موزوں جگہ پر پوزیشنوں پر کھڑا کر دیا گیا۔ ALD محمد علی کو آگے بھیج کر سوار محمد حسین، سوار میر عالم، ALD ظہور اور ALD شبیر کو گدرپور گاؤں واپس بلا لیا گیا۔ دشمن کا یہ حملہ روک لیا گیا۔ میجر محمد اکرم نے آگے جا کر صورتحال کا جائزہ لیا تو اسے گشتی پارٹی کو پھر آگے بھیج دیا تاکہ حملے کی اطلاع قبل از وقت مل جائے۔ اس دوران پاک فضائیہ کے طیارے آ گئے۔ خاصی دیر سارے محاذ پر اڑ کر پٹھان کوٹ کی سمت چلے گئے۔ شام 6 بجے محمد حسین دوڑتا ہوا آیا اور اطلاع دی کہ دشمن گدرپور اور کھیڑا کے درمیانی علاقوں میں ٹینکوں اور انفینٹری کو جمع کر رہا ہے۔ اس قبل از وقت اطلاع سے حملہ روکنے کی تیاری کر لی گئی۔ وہاں اپنے ٹینکوں کے صرف 2 ٹروپ، 6 آر گنیں اور مختصر سی ایک رائفل ٹروپ تھا۔ اسے قلیل تعداد سے پوری ٹینک ریجمنٹ اور ایک پلٹن کا حملہ روکنا تھا۔ حملہ آوروں کی قوت اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، مگر اپنے پاس یہی چند ایک دقیانوسی شرمن ٹینک اور 6 آر گنیں تھیں جن سے 4000 گز یعنی 2.5 میل کے قریبی علاقے کا دفاع کرنا تھا۔ شام 6:30 بجے اپنے جوانوں کے لیے ایک گاڑی میں کھانا آیا جو ابھی تقسیم ہو رہا تھا کہ دشمن کی سینکڑوں توپوں نے آگ اور لوہے کی بارش شروع کر دی۔ دشمن گولہ باری کے معاملے میں بڑا ہی شاہ خرچ واقعہ ہوا۔ صحیح معنوں میں گولوں کی مینا برسات دیتا ہے۔ یہ شدید گولہ باری حملے کا پیش خیمہ تھا۔ دور گاؤں میں روشنی نظر آئی، بہت بلند شعلے اٹھ رہے تھے۔ غالباً ہمارے توپ خانے کی گولہ باری سے بھوسے کے بہت بڑے ڈھیر کو آگ لگ گئی تھی۔ تاریک رات میں یہ روشنی ہمارے لیے فائدہ مند تھی۔ دشمن کی حرکت صاف نظر آ رہی تھی۔ گولہ باری کی آڑ میں دشمن کی انفینٹری نے جے ہند کا نعرہ لگا کر حملہ کیا۔ دشمن کے ٹینک پیچھے کھڑے ہوئے ہماری پوزیشنوں پہ گولہ باری کر رہے تھے۔ بھارتیوں نے جرت مندی کا قابل تعریف مظاہرہ کیا۔ وہ ہمارے ٹینکوں کے عقب میں آ گئے تھے۔ ٹینکوں کی مشین گنیں فائر کر رہے تھے اور رائفل ٹروپ جم کر مقابلہ کر رہا تھا، مگر یہ تقریباً 10 جنگ تھی۔ اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو گئی۔ گرنیڈ پھینکے جا رہے تھے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ بشیر کوانی کا ملاپ اپنے ٹینکوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس قیامت میں اپنے ٹینک سواروں کو پکار رہے تھے۔ دشمن زیادہ ہیں جم نہ سکا اور بھاگنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد محمد حسین نے بتایا کہ اپنے کچھ آدمی ہڑر کلا میں رہ گئے، ان کا گھیرے میں آ جانا لازمی تھا۔
अपनी राइफल ट्रूप को इनकी मदद के लिए तैयार किया गया, लेकिन निसफ घंटे बाद दुश्मन बिल्कुल ही भाग गया। 8 दिसंबर दोपहर के वक्त दुश्मन के टैंक एक और हमले के लिए आए। हमारे टैंक ढके छुपे थे। दुश्मन के टैंक इस खुशफहमी में बड़े आए कि पाकिस्तान टैंक वहाँ नहीं थे, हमारे टैंक वहीं थे और इन्होंने फायर रोक रखा था ताकि दुश्मन के टैंक पूरी तरह जद में आ जाएं। जो ही पहला ट्रूप करीब आया, हमारे टैंकों ने गोले दाग दिए। 3 टैंक जल उठे और बाकी रुक गए। सवार मोहम्मद हुसैन अपने साथियों शबीर और ज़हूर को साथ लेकर हरड़ कला गांव में जा पहुंचा और सबसे ऊंचे मकान की छत पे खड़े होकर दुश्मन को देखने लगा। दुश्मन दूर और एक बागीचे में टैंकों और इन्फेंट्री को इकट्ठा कर रहा था। मोहम्मद हुसैन ने वहाँ से बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, तोप खाने को फायर कराओ। तोप खाने के ओपी कैप्टन अमीन मिर्ज़ा और सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत अली शाह गाँव में जाकर इसी छत पर चढ़ गए। वहाँ से उन्होंने अपने तोप खाने को फायर ऑर्डर दिया। पीछे से जब गोले आकर बागीचे में गिरे तो दुश्मन की कैफियत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। गोले नहायत सही जगह पे गिरे थे। दुश्मन अफरा तफरी के आलम में मुंतशिर होने लगा और उसे जो टैंक दाएं बाएं खड़े थे उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। दुश्मन इस गोलाबारी से छत पर खड़े रहना बेहद ख़तरनाक था। कैप्टन अमीन मिर्ज़ा और सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत अली शाह वहाँ से उतर आए, लेकिन सवार मोहम्मद हुसैन ने वहाँ से हटने से इनकार कर दिया। कहने लगा, जब तक दुश्मन पूरी तरह तबाह और पसपा नहीं हो जाता इस जगह से नहीं हटूंगा। आखिर दुश्मन तबाह भी हुआ और भाग भी गया। दिन के 2 बजे दुश्मन के तैयारे आ गए और इनके साथ तोप खाने की फ़ज़ाई ओपी का छोटा तैयारा L-90 भी आ गया। इसने हमारी पोजीशनों पर बहुत गोलाबारी कराई और इसके साथ तैयारों ने भी खूब आग बरसाई। इससे हमारी 2 आर्गनों की जीपों को आग लग गई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। लेकिन पोजीशन किसी ने ना छोड़ी। ये अपने दस्तों की पहली शहादत थी। उस वक्त तक दुश्मनों के सैकड़ों प्यादा और बख्तर बंद नफरी तबाह की जा चुकी थी। दुश्मन के ओपी तलाश, तोपों और तैयारों की इस क़यामत में सवार मोहम्मद हुसैन इस छत पे खड़ा दुश्मन के टैंक और प्यादे दस्तों पर नज़र रखे हुए था ताकि किसी तरफ से टैंक या इन्फेंट्री आगे बढ़े तो कबल अज़ वक्त इतला दे दे। ये बेहद ख़तरनाक ड्यूटी थी जो इसने रज़ाकाराना तौर पर अपने ज़िम्मे लगा रखी थी। जब दुश्मन के तैयारे चले गए और गोलाबारी ख़त्म भी होगी तो मोहम्मद हुसैन वापस आ गया। इसने बताया कि दूर दूर तक दुश्मन नज़र नहीं आ रहा। इसने अपने जायज़े और मुशाहिदे के मुताबिक मशवरा दिया कि अपने टैंकों और आर्गनों और राइफल ट्रूप और आगे कर लिया जाए। वो मौजू पोजीशनें देख आता था। ऐसे मशवरे एक सिपाही की फहम फरासत और फराज से बाला होते हैं, लेकिन सवार मोहम्मद हुसैन गैर मामूली जहानत का मुजाहरा कर रहा था। अगले रोज़ यानी 9 दिसंबर को मोर्चे आगे कर लिए गए और फ़ौरन ही मोर्चों पर बेतहाशा गोलाबारी शुरू हो गई, जिससे साफ जाहिर होता था कि दुश्मन का कोई ओपी कहीं करीब है या ऐसी जगह छुपा है जहां से वो सारे इलाके को देख रहा है। सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत अली शाह ने सामने का इलाका तलाश करने को कहा। ये फ़र्ज़ भी मोहम्मद हुसैन ने अपने ज़िम्मे ले लिया। ऐसी बेपनाह गोलाबारी में वो ख़तरनाक हाथ तक आगे चला गया, कहीं रेंग कर और कहीं उठकर। वो ऐसे इलाके को खोजने लगा जहां दुश्मन की एक गोली उसे ख़त्म कर सकती थी। उसकी अकबी निगाहें हर उस दरख्त के पत्ते को देख रही थी जो उसे करीब या दूर खड़ा नज़र आता था। वो 2 घंटों की सब्र आज़मा तलाश के बाद मोहम्मद हुसैन ने एक जगह से एक दरख्त की तरफ इशारा करके बुलंद आवाज़ से कहा, फायर फायर। सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत ओपी को ज़िंदा पकड़ने का बंदोबस्त करने लगा, लेकिन मोहम्मद हुसैन ने गालबन ये सोच कर कि ओपी इतने करीब जाने वालों पर फायर ना कर दे, बार बार कहा, फायर फायर। चुनाचा एक टैंक की बड़ी गन भी और मशीन गन भी इस दरख्त पर फायर की गई, जिससे दरख्त ही उड़ गया। मोटे मोटे टहने टूट टूट कर गिरे और दुश्मन के ओपी के परखच्चे उड़ गए। इससे दुश्मन का तोपखाना अंधा हो गया। सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत मोहम्मद हुसैन की बेखौफी और फ़र्ज़ की लगन से इस कदर मुतासिर हो चुके थे कि इन्होंने स्क्वाड्रन कमांडर मेजर मोहम्मद अकरम से सिफारिश की कि मोहम्मद हुसैन को तमग़ाए जुर्रत मिलना चाहिए। मेजर अकरम इस वक्त आगे ही थे। ये सिफारिश मोहम्मद हुसैन का जायज़ हक़ था। अलग बात है कि मोहम्मद हुसैन इसके तमाम तर साथी और अफसर तमगों की खातिर नहीं लड़ रहे थे।
दुश्मन इस इलाके पर टैंकों और प्यादे दस्तों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। इसका हर हमला कम से कम एक टैंक रेजिमेंट और एक बटालियन से होता था। हर बार उसकी रेजिमेंटें ताज़ा दम होती थी, क्योंकि इसके पास नफरी और कुव्वत की कमी नहीं थी। इसके मुकाबले में हमारे पहले रोज़ वाले मुख्तसर सी नफरी लड़ रही थी। इसमें से वो आर गनी तबाह भी हो चुकी थी। दुश्मन इस इलाके की हर कीमत पे लेना चाहता था, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत से हमला करके भी इसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, बल्कि पाकिस्तान के जियालों ने इसे कमर तोड़ नुकसान पहुंचाया था। अब उसने तैयारे बुला लिए, जिन्होंने हमारी पोजीशनों पर रॉकेट और मशीन गन फायर शुरू कर दी। इसके साथ दुश्मन की कवर आर्टिलरी की गोलाबारी आने लगी। अपने मोर्चे गर्दो गुबार में रूपोश हो गए और सूरत हाल ऐसी भयानक होगी जिसमें जवानों के होश ठिकाने रखना और ज़िंदा रहना नामुमकिन नज़र आने लगा। ऐसी सूरत में जब ज़मीन और आसमान गर्दो गुबार में एक हो जाते और गोले ओलों की तरह पड़ रहे होते, दुश्मन के टैंक और प्यादा दस्ते मोर्चे पर चढ़े आते हैं। ऐसी क़यामत खेजी में मोहम्मद हुसैन गर्दो गुबार के घटाव में भाग दौड़ कर देख रहा था किस तरफ से दुश्मन के टैंक तो नहीं आ रहे। सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत अली शाह और सेकंड लेफ्टिनेंट मोहम्मद बशीर खाकवानी के लिए जंग का इंतहाई संगीन ख़तरा पैदा हो गया। उन्होंने स्क्वाड्रन कमांडर मेजर अकरम से मिलाप करके कहा कि पाक फ़ज़ाइया के बगैर ये तूफ़ान रोकना मुश्किल है। मेजर मोहम्मद अकरम मेजर ईमानुल्लाह ने इन नौजवान ट्रूप लीडरों का हौसला बढ़ाया और कहा, पाक फ़ज़ाइया आ रही है। फ़ज़ा में रूस के 4 जदीद तरीन लड़ाका बमबार तैयारे Su-7 थे, जो हमारी सरहदों पर आग बरसा रहे थे। ज़रा सी देर में रूस के 4 जदीद तरीन तैयारों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के 3 कदीम तरीन सीबर तैयारे आ गए। अपने अफसरों के दिल बैठ गए, क्योंकि वो जानते थे Su-7 और सीबर में वही फ़र्क होता है जो मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल में होता है। भारतीय भी हमारे सीबर तैयारों को देखकर तंजियां मुस्कुराते होंगे। पाकिस्तानियों ने रूसी तैयारों के मुकाबले में भेजा गया था, मगर फ़ज़ा में एक मौजज़ा रहनुमा हुआ। ये एक शहबाज ने चंद सेकंड में एक रूसी तैयारे को आगे लगा लिया और मशीन गने फायर खोल दी। रूस का तेज़ तरीन और जदीद तरीन तैयारा स्याह धुआं उगलता ज़मीन पर जा पड़ा और जलकर राख हो गया। अपने अफसर बताते हैं कि पाक फ़ज़ाइया के शहबाजों की उड़ान में निराली शान और उनकी झपटों और फ़ज़ाई पैंतरों में खुद एतमादी थी। एक रूसी तैयारे को गिराकर उन्होंने दुश्मन के 2 टैंक भी तबाह कर दिए, और जब ऊपर देखा तो फ़ज़ा में कोई Su-7 नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता हमारे तीनों शहबाज नहायत खूबसूरत तरतीब में दुश्मन के टैंकों पर और अकब में गोते में जा और उठ रहे थे। महाज अचानक खामोश हो गया। शहबाजों ने अपने मोर्चों पर अलविदाई गोता लगाया और जिस शान से आए थे जवान मोर्चों से निकल आए और पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सवार टैंकों पे खड़े नारे लगा रहे थे और जवानों ने नाचना शुरू कर दिया। इस मुसर्रत भरे फातिहाना हंगामे में मोहम्मद हुसैन की आवाज़ सबसे बुलंद थी। इसने सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत के पास जाकर उन्हें सिखों और हिंदुओं के लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए। उस वक्त उसके सर पर फुलादी हेलमेट नहीं था। मौत की आगोश में हंसी मजाक अजीब लगता है, लेकिन मोहम्मद हुसैन दुश्मन और मौत का मजाक उड़ा रहा था। सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत ने से कहा, खुदा के बंदे, ये हंसने हंसाने का वक्त नहीं और तुम हेलमेट पहन लो। गोले का टुकड़ा नंगे सर पर लगा तो खोपड़ी खुल जाएगी। सर, इसने अपनी मखसूस और फितरी शगुफ्तगी से जवाब दिया, मारने और मरने के लिए फौज में भर्ती हुआ हूँ, मार रहा हूँ। जब मरने का वक्त आया तो इसी तरह हंसते हुए मरूंगा। और वो हंसता खेलता अपने मोर्चों की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाने लगा और इसके साथ ही दुश्मन का तोपखाना फिर फट पड़ा, जैसे सावन की घटा फट पड़ी हो। इस शदीद और तेज़ गोलाबारी में मोहम्मद हुसैन चाय का कप उठाए सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत के पास गया। वो ऐसी सूरत हाल में चाय पीने के मूड में नहीं था, लेकिन मोहम्मद हुसैन ने इन्हें चाय पीने में मजबूर कर दिया। रात के वक्त महसूस हुआ कि दुश्मन हरड़ खुद में आ गया है। सेकंड लेफ्टिनेंट बशीर कवानी की क़यादत में 10 जवानों को वहां भेजा गया। मोहम्मद हुसैन इस पार्टी के साथ था। वो तो अब सबका गाइड बन गया था।
किसी खतरे की खातिर में ना लाता था। इसका इरादा था कि अगर वहाँ दुश्मन हुआ तो ज़िंदा पकड़ कर लाएंगे, मगर गांव खाली था और इसकी पार्टी को वहीं रहने का हुक्म दिया गया। ज़रा देर बाद इंजीनियर्स को आगे भेज दिया गया ताकि इस इलाके के आगे बारूदी सुरंगें बिछा दें। ये काम भी मोहम्मद हुसैन की रहनुमाई में हुआ, क्योंकि वो इलाके से और दुश्मन के हमलों के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। दो घंटों में तमाम इलाके के सामने बारूदी सुरंगें बिछा दी गईं। रात 12 बजे सेकंड लेफ्टिनेंट बशीर कवानी अपनी पार्टी को वापस मोर्चों में ले आए। थोड़ी ही देर बाद दुश्मन ने हस्बे मामूल गोलाबारी के साथ इन्फेंट्री से हमला कर दिया। टैंक पीछे खड़े गोलाबारी कर रहे थे। दुश्मन को मालूम था कि यह इलाका बारूदी सुरंगों से साफ है, चुनाचा जय हिंद के नारे बेखौफ ख़तर बढ़े और जब बारूदी सुरंगों में दाखिल हुए तो ज़मीन ने धमाके और शोले उगलकर जय हिंद के नारों को हड़प कर लिया। इधर से टैंकों और राइफल ट्रूप की मशीन गनों ने रही सही कसर पूरी कर दी। तसव्वुर किया जा सकता है कि दुश्मन का नुकसान किस कदर हुआ होगा। जो बारूदी सुरंगों से बचे और वो मशीन गनों की नज़र हो गए। दुश्मन इसके सिवा और कर ही क्या सकता था। रात भर हमारी पोजीशनों पर बेदरेग गोलाबारी करता रहा। 10 दिसंबर की तारीख सुबह तुलू हुई। अपने मौके पर मोहम्मद हुसैन ने अपने ज़िम्मे जो फ़राइज़ आयद कर लिया वो उसकी नॉर्मल ड्यूटी से बाला था। गोलाबारी से लोहे के टुकड़े और पत्थर हर सू उड़ रहे थे और गोलियों ने फ़ज़ा में आग का जाल तन दिया। ज़रा सी हरकत खुदकुशी के बराबर थी। अपनी आर गने, टैंक और राइफल ट्रूप की मशीन गने वो दूर पोजीशन में थीं, क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी का इलाका ज़्यादा था। मोहम्मद हुसैन उड़ती गोलियों और लोगों के टुकड़ों में दौड़ दौड़ कर आगे जाता। दुश्मन के किसी छुपे हुए टैंक या किसी मशीन गन को देखता और दौड़ता हुआ अपनी किसी आर गन मशीन के पास जाकर बताता कि वहाँ फायर करो। इसके साथ वो हर मोर्चे में जाता, नारे लगाता और हर किसी को हौसला बढ़ाता और अम्यूनिशन इस अंदाज से मोर्चों तक पहुँचाता कि एक बक्स कंधे पर और दूसरा बगल में दबा दे। इतने ज़्यादा बोझ तले दौड़कर मोर्चे पे रखता रहा। इस दौरान वो अपनी मशीन गन भी जो इसके मोर्चे में पड़ी थी किसी टारगेट को देखकर इस पे फायर करता रहा। दुश्मन के टैंकों को छीनने की बहुत सी जगह थी। इसके अलावा दोनों तरफ के तोपखानों की गोलाबारी के गिर्द और धुएं में कुछ नज़र नहीं आता था। मोहम्मद हुसैन बहुत आगे जाकर किसी छुपे हुए टैंक को देखता, फिर ये देखता कि अपनी कौन सी पोजीशन की आर गन या टैंक इसे मार सकती है। आर गन जब फायर करती है तो इसके पीछे से शदीद तेज़ी से धुआं और शोला सा निकलता है, जिसे ब्लास्ट कहते हैं। इसलिए फायर करते हुए गन के पीछे कोई आदमी खड़ा नहीं रहने दिया जाता। एक बार मोहम्मद हुसैन को आर गन के तोपची को गन के पीछे खड़ा बता रहा था कि फला दरख्त के तने के साथ गोला फायर करो, इसके पीछे एक टैंक खड़ा है। तोपची ने फ़ौरन निशाना लिया और गोला फायर कर दिया। मोहम्मद हुसैन अपनी ही हजियानी कैफियत में तारीफ था। इसकी नज़र दुश्मन के टैंक पर थी और वो गन के पीछे खड़ा रहा, लेकिन ज़रा सी एक तरफ था। जब गोला फायर हुआ तो ब्लास्ट इसके मुंह पर पड़ा, मगर ज़रा एक तरफ होने की वजह से इसका चेहरा ज़रा सा झुलस गया। कोई अफसर दूर खड़ा देख रहा था, वो घबरा कर इसकी तरफ दौड़ने लगा तो मोहम्मद हुसैन ने कान पर हाथ रखकर हिलाया, फिर आंखों पर हाथ रखकर हिलाया और इशारों में हंसकर अफसर को बताया, कान बंद हो गया है लेकिन आंखें ठीक हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और वो फिर आगे को दौड़ पड़ा। रेजिमेंट के सेकंड आने कमांडर मेजर इमानुल्लाह ने इसी वक्त घुमसान के मार्के में वायरलेस पर रेजिमेंट कमांडर कर्नल तुफैल मोहम्मद से सिफारिश की कि वो सवार मोहम्मद हुसैन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ देना चाहते हैं। तो ये थी कि मोहम्मद हुसैन सिर्फ पहला सिपाही निशाने हैदर होगा, बल्कि पहला ज़िंदा निशाने हैदर होगा। मगर मोहम्मद हुसैन की ज़िंदगी सिर्फ 30 मिनट की रह गई थी। मोहम्मद हुसैन को इल्म नहीं था कि इसे तमगे दिलाने की सिफारिश हो चुकी है। वो बेनियाज था। मोहम्मद हुसैन दुश्मन का कोई छुपा हुआ टैंक देखकर दौड़ता और एक आर गन के करीब खड़ा तोपची को बता रहा था। तोपची ने गोला फायर किया, उधर से एक मशीन गन ब्रस्ट आया, उधर दुश्मन का टैंक तबाह हुआ और इधर मशीन गन ब्रस्ट मोहम्मद हुसैन के सीने से पार हो गया। वो गिर पड़ा। नायब रसालदार अली नवाब और लायंस अब्दुर्रहमान क्यानी दौड़कर पहुंचे और मोहम्मद हुसैन को उठाया। मोहम्मद हुसैन ने नई सी आवाज़ में पूछा, दुश्मन कहाँ है?
आगे तो नहीं आया और इसने जान अल्लाह के हवाले कर दी। इन्हां दुश्मनां कोलों की डरना, ए मौत कोलों भी डरदे नहीं है, अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी देंदे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। मैयत को पीछे लाकर अमानत के तौर पर शकरगढ़ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तकरीबन 2 हफ्ते बाद इसका वालिद रोज़ अली आया और कब्र से ताबूत निकलवा कर अपने गांव मोहड़ा हयात तहसील गुजर खान ले गया। इसके बाद शहीद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर दिया गया। सवार मोहम्मद हुसैन तहसील गुजर खान ज़िला रावलपिंडी के गाँव मोहड़ा हयात में 18 जून 1949 के रोज़ पैदा हुआ था और 1966 में फ़ौज में भर्ती हुआ। शहीद माँ बाप का इकलौता बेटा था और कुनबे का कफ़ील। इसके वालिद मोहतरम अली बहुत ही गरीब काश्तकार हैं जिनकी अपनी ज़री ज़मीन कुल 3 कनाल है। इनका गुजारा मोहम्मद हुसैन की तनख्वाह पर था। शहीद की जेब से 1 सवा 5 रुपये और एक ख़त बरामद हुआ जो इसने वालिद मोहतरम के नाम लिखा था। इसमें शहीद ने इन्हें लिखा था कि मैं 100 रुपया भेज रहा हूँ, इससे कर्ज अदा कर देना। शहीद की एक बच्ची है जिसकी उम्र 2.5 साल है और 3 माह की उम्र का एक बच्चा जिसे शहीद ने अभी तक नहीं देखा था। पहला निशान हैदर कैप्टन सरवर शहीद भी तहसील गुजर खान के रहने वाले थे। मोहम्मद हुसैन अक्सर कहता था कि पोटोहार ने पाकिस्तान को एक निशान हैदर दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि पोटोहार एक और निशान हैदर पैदा हो। वो कैप्टन सरवर शहीद को बहुत याद किया करता था। नारोवाल की सरहद का ये खित्ता जहाँ गजगाल, हरड़ खुद और हड़ड़ कला, गिद्दरपुर और खीड़ा वाक़या है, झूमते लहराते फसलों की हरियाली का खुशनुमा समंदर है। समंदरी लहरों की तरह लहलहाते गंदम के हरे भरे खोशों के दरमियान कहीं कहीं दरख्तों के झुंड खड़े थे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आज इस खित्ते के हुस्न को देखो तो गुमान भी नहीं होता कि यहाँ खाको खून का बड़ा ही भयानक ड्रामा खेला गया और इस रूह अफ़ज़ा खित्ते ने हक व बातिल के मार्के में एक निशान हैदर पैदा किया। इस खित्ते की हरियाली में पाकिस्तान की माओ के जिगर का खून शामिल है। हमारे सरफरोश मुजाहिदों ने गजगाल, हड़ड़ खूद, हड़ड़ कला और सरहद के ऐसे बेशुमार छोटे छोटे गुमनाम और गैर अहम से गाँव को बदर, हनैन, अजनादेन, ओहद और कासिया की लड़ाई में परो दिया है। और जो शजात की इस दास्तान का हासिल ये है कि सेकंड लेफ्टिनेंट फरासत अली शाह और सेकंड लेफ्टिनेंट मोहम्मद बशीर खान खाकवानी जैसे कम सिन लड़कों ने रूस के जदीद तरीन TT-55 टैंकों की जिद्दत और दहशत को शर्मन जैसे कदीम और बेकार टैंकों से तोड़कर रेजा रेजा कर दिया। फ़ज़ा में भी रूस की बर्तरी को जिसकी अलामत Su-7 थी, हमारे शाहबाजों ने साइबर जैसे कदीम और सुस्त रफ्तार तैयारों से जलाकर राख कर दिया। और इस दास्तान शजात का हासिल ये है कि एक मुफलिस काश्तकार के बेटे ने कौम पर साबित कर दिया कि पाक फ़ौज राशन और तनख्वाह नहीं मांगती, अम्यूनिशन और असला मांगती है। 10 शर्मन टैंकों से 10 गुना संचूर और TT-55 टैंकों को तबाह करने वाले और साइपर तैयारों से Su-7 को गिराने वाले मकबूजा कश्मीर को ही नहीं, सारे के सारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि इन्हें लड़ने के लिए बारूद और असला दो। शहरों में बैठकर फ़ौज पर नुक्ताचीनी करने वाले ज़रा सरहदों पर आकर देखें हम कौन से हथियारों से लड़ते हैं, हमारी नफरी क्या है, हमारी कुव्वत क्या है, हमारे मुकाबले में दुश्मन की ताकत और नफरी क्या थी और इसका असला बारूद कैसा था। फिर भी हमने हिंदुओं की कमर तोड़ दी और बेकार और नाकाफ़ी असला से मुल्क को बचा लिया। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।